हम सब के लिए एक बहुत ही बड़ी आशीष और सौभाग्य की बात है। And particularly when we started studying the book of Acts, I am very sure the Spirit of God is really speaking to us from the book of Acts. और जब हम परमेश्वर की महिमा के लिए प्रेरितों के काम का अध्ययन कर रहे हैं, तो मैं बहुत ही निश्चिंत हूँ कि परमेश्वर इसके द्वारा हमें बड़ी आशीष को देने जा रहा है। Yeah, I am sure you are also blessed as you are listening to God's word. निश्चित रूप से आप भी जब प्रभु का वचन सुनते हैं, आप भी इसमें आशीषित और सौभाग्यशाली बनेंगे। Yeah, now we will continue from Acts chapter 5. Acts, book of Acts chapter 5. प्रेरितों के किताब 5वां अध्याय से हम लोग आज जो है आगे बढ़ेंगे। Yeah, we stopped last week with the greatest, we have seen two examples, and we stopped last week with the greatest good example of Barnabas giving away his money or his property and bringing it to the church. That's where we stopped last week. पिछले बार हमने शुरू करने के बाद जहां पर समाप्त किया वो ये बात थी, बरनबास ने अपने संपत्ति को किस प्रकार बेचकर प्रेरितों के पांव पर रख दिया। उस उदाहरण को देखने के द्वारा हमने वहां पर विराम लिया था। It was definitely both the incidents, the prayer of the early church and the good example of Joseph, the Barnabas, both are very significant. और दो उदाहरण जो हमने देखा था, आरंभिक कलीसिया की जो प्रार्थना का जीवन और दूसरा बरनबास के जीवन का उदाहरण, ये दोनों ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं। The kind of prayer that the early church has offered, we have learned many aspects from that prayer. और आरंभिक कलीसिया ने जिस प्रकार से प्रार्थना किया, वहां पर हमने बहुत सी अद्भुत बातों को सीखा था मसीह जीवन के बारे में। The way they prayed, they did not pray for their personal things, but they prayed for God's work to be done. उन्होंने अपने व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए नहीं, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के राज्य, उसके कार्य के बढ़ने के लिए प्रार्थना किया था। They prayed for the boldness, that God would give them the boldness so that they will preach God's word very boldly and courageously. उन्होंने प्रार्थना किया था कि परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के लिए परमेश्वर उन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ प्रदान करे। They did not ask for the persecution to be removed, but they asked for the grace and the strength in the midst of the persecution. उन्होंने ये प्रार्थना नहीं किया कि सताव की परिस्थितियां चली जाए, पर ये प्रार्थना किया कि सताव के बीच में परमेश्वर अपना हियाव और सामर्थ उनके जीवन में प्रदान करे। Yes, so we understand that the God also was pleased to answer their prayer in such a way the place where they were gathered was shaken. और परमेश्वर भी उनकी प्रार्थना से इस प्रकार प्रसन्न हुआ कि जब उन्होंने प्रार्थना किया तो वो स्थान जहां पर वो प्रार्थना कर रहे थे, वो स्थान हिल गया, बाइबल कहती है। That we will see that God has honored their prayer. That is what is needed even today. Many times we want to pray. Sometimes we don't find answers from God. We need to learn to pray that God would answer. God would be pleased with our prayers. आज भी कई बार हम लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिलता है। इसलिए हमें सीखना है कि हम इस प्रकार से प्रार्थना करें कि उस प्रार्थना में परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर का नाम ऊंचा हो। So we will also learn, from that text, the way they addressed God, sovereign Lord. They said, they knew that everything was in the hands of God. और इस प्रकार जिस पर उन्होंने प्रार्थना की, सर्वोच्च परमेश्वर के नाम से प्रार्थना की, उस बात को हमने देखा। और सारी परिस्थितियां परमेश्वर के हाथ में है, उसने सब कुछ किया है। इन बातों को भी हम याद रखते हुए प्रार्थना करें। So definitely it was a good example for all of us about prayer. You also may meditate upon it, in your personal life or in your groups or church Bible study or whatever. और हम सब भी अपने व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक प्रार्थना में, कलीसिया में, समूह में जब भी मिलते हैं, इन बातों को मनन और चिंतन करें इस प्रार्थना के विषय के बारे में।
And when it comes to Barnabas, what he did, we learned three things from Barnabas' life last time. One thing was his giving was so generous and sacrificial. तीन बातें हमने बरनबास के बारे में पिछले बार ही देख लिया था, और एक बात ये थी कि जो बरनबास था वो देने के मामले में बहुत ही उदार था और वो देने में बहुत ही आगे था. So Barnabas was good at not only giving, but by doing that, he became a very good example for the church of that day. न केवल बरनबास स्वयं उसके पास देने का जीवन था, लेकिन वो एक उदाहरण बन गया था. तो इसको देखकर कलीसिया भी अपने चीजों को देना शुरू किया था. Third thing we noticed about Barnabas, that not only sacrificial giving and generous giving, not only being an example, but he was more concerned about building up of people who are backslidden. और तीन बातें हमने जो देखा था बरनबास के बारे में, ना केवल वो त्यागपूर्ण उसने देना सीखा था, ना केवल कलीसिया के लिए एक उदाहरण बन गया था, इसके साथ साथ हम देखते हैं उसने लोगों के जीवन को तैयार करना और खड़े करने में अपने जीवन को उसने लगाया था. We saw how he was responsible or taking the responsibility of bringing Saul turned Paul to the church. He stood by Saul turned Paul. और हम यहाँ पे देखते हैं कि किस प्रकार वो एक ऐसा व्यक्ति बना जो साउल को जो पौलुस बन गया, साउल को पौलुस बनाकर उसने कलीसिया में किस प्रकार जोड़ा, उस पे इस प्रकार के कार्य को हम देखते हैं. उसी ने पौलुस को कलीसिया में मिलाया था. So definitely in the early church, he was such a good example. Not only Saul turned Paul, we also saw how John Mark was brought up, encouraged and brought up and counseled by Barnabas. और ना केवल हम साउल के बारे में जो पौलुस बन गया उसके बारे में देखते हैं, इसके अलावा मरकुस यूहन्ना के बारे में भी देखते हैं किस प्रकार उसने उसे प्रोत्साहित किया था और परमेश्वर की सेवा के लिए आगे बढ़ाया था. And now with that background of such a good example, we come to chapter 5. और उस उदाहरण के साथ ही हम लोग जो है 5वें अध्याय में इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम 5वें अध्याय को अब पढ़ेंगे. Chapter 5 introduces us to a very bad scenario that had taken place in the early church. अध्याय 5 हमें एक ऐसे चित्र को दिखाता है जो बहुत ही बुरी स्थिति में आरंभिक कलीसिया में कुछ घटनाएं घटी उसके बारे में है. And I was reading a commentary on this, and the commentator very beautifully explained the whole scenario of Acts 5, Ananias and Sapphira. और हनन्याह और सफीरा से संबंधित एक टीका में पढ़ रहा था. उस 5वें अध्याय पे एक बहुत ही सुंदर बात मैंने पाया, इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे. He says that Satan, the originator or author of sin, wanted to attack the church externally by arresting Peter and John and all that we have read in 3rd chapter and 4th chapter. हम यहाँ पे देखते हैं कि शैतान जो है, जो पाप का उत्पन्न करने वाला है या पाप में रहने वाला है, तीसरे और चौथे अध्याय में बाहरी तरीके से कलीसिया पर आक्रमण किया पतरस और यूहन्ना को उस प्रकार से गिरफ्तार करने के द्वारा. So he was not successful. He could not attack the church. The church was very strong. No matter how Sanhedrin wanted to trouble them, or no matter how other people wanted to trouble them, church was very fervent, vibrant, and church was going forward. लेकिन जो कलीसिया थी बहुत ही मजबूत थी. किसी कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना आए, वो लोग मजबूती से आगे बढ़ते गए. विरोध का कोई भी असर उनके जीवन में या रुकावट उनके जीवन में नहीं हो पाया. So when Satan could not enter the church, or Satan had not attacked the church from outside, और जब शैतान बाहरी तौर से कलीसिया पे आक्रमण करने में असफल हो गया, now he took a different route to enter into the church like a silent serpent. और तब शैतान ने एक दूसरा रास्ता अपनाया. एक शांत रूप से काम करने वाले सांप के रूप में, अंदरूनी रूप से उसने कार्य करना शुरू किया. So now we need to understand that Satan will try to attack the church like a roaring lion from outside, roaring lion. और देखिए बाहर से जो शैतान है एक गरजने वाले सिंह के समान आक्रमण करने की कोशिश करेगा. If he cannot do that, if he is not successful, if he doesn't succeed in attacking by like a roaring lion, he will try through a different means like a deceiving serpent. और अगर वो ऐसा करने में असफल हो जाता है बाहरी रूप से आक्रमण करने में,
और तब वो जो है एक धोखा देने वाले सर्प के रूप में, अंदरूनी रूप में कार्य करना शुरू करता है। So Satan now tried attacking the church by the internal members, by the members of the church. अब शैतान यहाँ पर अंदरूनी रूप से कैसे कार्य करता है? कलीसिया के जो सदस्य हैं उनके जीवन में कुछ वो प्रभाव डालता है। And very cleverly, very deceptively, Satan did an attempt. और बहुत ही चतुराई के साथ वो इस प्रयास को पूरा करने की कोशिश करता है। You look at it how Satan plays, these deceptive roles. देखिए किस प्रकार एक परिवार में जो है या घर में जो है शैतान एक भ्रम की आत्मा को लेकर आता है। Just then we have seen the good example, very great example of Barnabas. Nobody had done. I mean, it was first recorded with such an event about Barnabas. अभी हमने बरनबास के बारे में एक अच्छे उदाहरण को देखा था और उस समय ऐसी कोई भी गलत बात नहीं थी। बहुत ही अच्छा उदाहरण वहां पर पेश किया गया था। Then at the same time, probably Satan was preparing the hearts of Ananias and Sapphira to do some nasty thing, very untoward incident in the church at the same time. उसी समय शैतान जो है हनन्याह सफीरा के मन को इस प्रकार उभार रहा था कि वो ऐसा कोई गड़बड़ी वाला कदम उठाए जिससे कलीसिया में एक गड़बड़ी की आत्मा काम करना शुरू करे। And he used one of the families, few members of the church to do that mischief, bad example in the church. और उस प्रकार के गलत कार्य को करने के लिए उसने कलीसिया के कुछ सदस्यों को, एक परिवार को इस्तेमाल किया। Can we imagine that the members of the church, insiders, not Sanhedrin members, not Pilate, not Herod, not this and that, but people who are inside the church also can they also can cause trouble to the church. It's very, very unfortunate and very sad. देखिए एक बहुत ही बड़े दुर्भाग्य की बात है, जो बाहर के लोग हैं, सनहेद्रिन की जो सभा है या पिलातुस या हेरोद जैसे लोग हैं, वो नहीं, उससे भी बढ़कर जो कलीसिया के अंदर जो सदस्य है वो कलीसिया के लिए एक रुकावट या गड़बड़ी का कारण बन जाते हैं। So here the lesson is, please keep this in mind. He will try like a roaring lion, a big attack. If he is not successful, he will also come as a serpent, deceiving serpent, very silently. तो इस बात को जो हम याद रखें, इस शिक्षा को, कि शैतान सबसे पहले बाहरी रूप से एक गरजने वाले सिंह के रूप में काम करता है, लेकिन जब वो ऐसा नहीं कर पाता तो कलीसिया के अंदर एक भ्रम फैलाने वाले एक सर्प के रूप में वो घुसता है। So Satan will use outside people like political people or other religious people or whatever it is. Satan can also use the believers, inside people, those who are in singing team, those who are in preaching, those who are very good, ministers. Ministers means Christian ministers, servants of God. He may use anybody. और शैतान कलीसिया के बाहर के लोगों को ही इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन वो कलीसिया के अंदर के लोग, कई बार जो पास्टर्स हैं, प्रचारक हैं और सेवकाई करने वाले, उनके अंदर भी वो काम करने में सफल हो जाता है। And I'm sure even these days Satan is very successful. He is succeeding in doing that. He is using youth members, he is using elders, he is using members, to spoil the church. और आज इन दिनों में हम देखते हैं कि शैतान वर्तमान की जो कलीसिया है, आज जो कलीसिया, उसमें भी जवानों के बीच में या चर्च मेंबर्स के बीच में इसी प्रकार कार्य करने में बहुत हद तक वो सफल हो जाता है। When we are reading this incident, when we are thinking of this incident, it's quite frightening to understand or even to study. और इस प्रकार की एक घटना को पढ़ना और ये जो है एक भयभीत करने वाली घटना है, जिसके बारे में आज हम देखने वाले, समझने वाले हैं। Now let us try to understand why and what has motivated Ananias and Sapphira to do that. आज इस बात को हम समझे, हनन्याह और सफीरा को किस बात ने उत्साहित किया ऐसे गलत रास्ते पर जाने के लिए। Just then they saw a good example of Barnabas. अभी एक बरनबास के अच्छे उदाहरण को उन्होंने देखा था। Yeah. So now they wanted to do that. They wanted to follow that example. और वो भी उसी उदाहरण को अनुकरण करना चाहते थे। But very unfortunately, their example was not a realistic one.
लेकिन उन्होंने इस बात को पाया कि जिस प्रकार से वो कर रहे थे वो एक सही दिशा या सही तरीका नहीं था, It was a fake example. और वो एक गलत उदाहरण था, झूठा उदाहरण था। It was not a genuine, sacrificial, generous giving. और जो जिस प्रकार से वो देना चाहते थे, हनन्याह सफीरा जो है, वो उदार रूप से त्याग पूर्वक देने वाला मन नहीं था उनके पास में। Yeah, if it was a genuine thing, they also would have done just like how Barnabas did. यदि वो वास्तव में गंभीर होते, ईमानदार होते, इस प्रकार बरनबास ने किया, वैसा ही वो भी किए होते। Yeah, they were having that deceptive mind, deceptive thought in their mind. That's the reason why they kept little money at home. और उनके मन में धोखा देने का विचार था, धोखा देने वाली बातें थी, इसलिए उन्होंने कुछ पैसे को जो है वो घर में रख छोड़ा था। Yeah, actually, last week also we mentioned that everybody doesn't need to do that. It is not required, it is not mandate, it is not a law, it's not an order that everybody should sell their properties and bring it to the apostles' feet. There was no such requirement, there was no such practice. और वास्तव में बात यह है कि उस समय ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी, कोई जरूरी बात, कोई नियम नहीं था कि हर एक व्यक्ति अपने भूमि को बेचे और प्रेरितों के पांव पे लाकर उस संपत्ति के पैसे को रखे। ऐसा कोई जरूरी नियम नहीं था वहां पर। After all, any giving should be a voluntary giving, not a forceful giving. You have every freedom to give and you have every freedom not to give. Giving is always voluntary. और जो बाइबल के अनुसार जो देना है वो स्वेच्छा से, स्वयं की इच्छा से होना है, दबाव से नहीं देना है। उस समय भी इसी प्रकार से था, कोई जरूरी नियम नहीं था। So Ananias and Sapphira has freedom not to sell at all. Even if they sell, they have always freedom to keep some at home and keep little whatever it is to the church and make it public. We sold it for amount and we only brought this much amount. Nobody will say anything about it. और हनन्याह और सफीरा को स्वतंत्रता थी कि जैसे उनकी इच्छा थी या उनके सोच तक कर सकते थे, कुछ पैसा वो घर पे रखे थे या कुछ वहां पे जमा किया, उस बात को वो बता सकते थे कि हमने ऐसा किया है, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। If they keep something at home and if they had informed Peter when Peter asked them, yes, Peter, we kept a little at home and we brought only this much at home. No, but nothing. I mean, nothing will happen. Everybody will accept it. That's fine. यदि वो पतरस से आकर इस प्रकार से बोलते हैं कि पतरस, हमने कुछ जो भूमि का पैसा घर में रखा है और कुछ भाग लाकर जमा किया है, तो पतरस कुछ भी नहीं कहता, कोई भी गलत वहां पर नहीं होता। The problem here is the lying factor. They lied both to the church authorities, they lied to the church and they also lied to the Holy Spirit, God. और मुख्य बात जो यहाँ पर है, उनकी झूठ बोलने वाली बात है। उन्होंने पवित्र आत्मा से झूठ बोला और कलीसिया के प्राचीनों से, प्रेरितों से भी उन्होंने झूठ बोला। यहाँ पर Somebody said lie is the common factor, common fitting factor for every sin, it seems. और किसी ने इस प्रकार से कहा, झूठ बोलना एक ऐसा पाप है जो हर प्रकार के पाप के साथ जो है वो सामंजस्य बना लेता है या उसके साथ में वो रहता है। So the major problem here they did was lying to the church, lying to the fellowship and lying also to the Spirit of God. जो मुख्य समस्या थी वो ये थी कि उन्होंने झूठ बोला पवित्र आत्मा से, पतरस से, प्रभु के लोगों से। And the other factor why they did that was they wanted to have the recognition, the lust of recognition. They wanted to be recognized by everybody. और दूसरा कारण ये था, उनके अंदर जो अभिलाषा थी कि उनकी मान सम्मान हो, उनको लोग जाने कि हमने कुछ दिया है, ये उनके अंदर एक मनसा थी। They had that pride, so they wanted to show to everybody that we also did like that. So the pride and lust of recognition is another reason. उनके अंदर जो घमंड था और मान सम्मान की जो अभिलाषा थी, ये दो कारण थे उनके अंदर पाप के जन्म लेने के। We want to show it to outside what we are not inside. हम बाहर कई बार वो दिखाना चाहते हैं जो हम अंदर नहीं हैं, और यही वो इस प्रकार का पाप है। This is also a serious problem that is there in our Christian churches and fellowships. और ये भी एक गंभीर समस्या है जो आज हमारी कलीसियाओं में और हमारे संगति में होती है। We want to show to outsiders what we are not in our inside. हम बाहर के लोगों को वो दिखाना चाहते हैं कि हम ऐसे हैं, जो वास्तव में अंदर से हम कई बार नहीं होते हैं। That's what these people did.
they were presenting themselves in a different way. और इस प्रकार जो है यही लोगों ने किया, और आगे हम इसके बारे में और भी देखेंगे। Now let us look at the other aspect. If at all they have done like that, should they be punished like that? Why should they be killed? Why such a thing? This is the biggest question that most of times many of us will have in our minds whenever we read about Ananias and Sapphira. यदि उन्होंने इतनी बड़ी गलती किया भी, तो क्या कारण था कि परमेश्वर ने उनको इस प्रकार दंड दिया, उनको मरना पड़ा? ये प्रश्न हमेशा एक विश्वासी के जीवन में और मेरे और आपके जीवन में जरूर आता होगा। Yeah, we can almost say that it's a small thing. What is there? No, for that small mistake, should they be killed? Both husband and wife. Why God was so serious about them? हम कह सकते हैं कि ये तो छोटी सी एक बात थी, झूठ बोलने की, उन्होंने गलती किया, तो परमेश्वर को क्या जरूरत है इतनी छोटी बात के लिए पति पत्नी दोनों को दंड मिला? मृत्यु का क्या कारण है ऐसा? Sometimes we may also say, are there not people who have done more criminal thing, more violent things, more disturbing things than Ananias and Sapphira, who are not actually punished? Why God punished these people? कई बार हम कहते हैं हनन्याह सफीरा से ज्यादा और भी ज्यादा चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले या बुरे लोग होंगे, परमेश्वर ने उनको दंड नहीं दिया लेकिन इनको दंड दिया, इसका क्या कारण है? Yeah, there are few answers given. There are some observations made in the Bible why God did like that and how God did in previous times also. और कुछ उदाहरण है बाइबल में कि परमेश्वर ने ऐसा न्याय क्यों किया, इसके बारे में पुराने और नए नियम में बहुत सी घटनाएं हैं। Yeah, one scholar and one commentator mentioned, whenever God is doing a beginning thing, whenever there is a beginning of some important event or period, God always punishes sin. जब परमेश्वर कोई भी पहला आंसर जो है, परमेश्वर किसी कार्य की जब शुरुआत करता है तो वो पाप को जरूर दंड देता है, इस प्रकार से वो प्रदर्शित करता है। So there were incidents even in the history of the Bible. We are going to see one or two of such things that God's judgment came upon people in different beginning of eras. और हम इतिहास में इस बात को देखेंगे, जब परमेश्वर ने किसी बात को शुरू किया तो किस प्रकार वो लोगों को दंड देता है गलत कार्य करने के लिए। उसके कुछ उदाहरण आज हम लोग देखेंगे। So let's quote one example. Maybe we can read our Bibles, book of Leviticus chapter 10. आइए हम लोग बाइबल से उदाहरण देखेंगे, लेवी व्यवस्था की किताब उसका 10वां अध्याय। Yeah, can you please read from first verse, brother? Yes, brother. लेवी व्यवस्था 10वां अध्याय और उसका पहला पद से हम पढ़ेंगे। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूप दान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। तब मूसा ने हारून से कहा, यह वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए अवश्य है कि वह मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। और हारून चुप रहा। Yeah, thank you. So here the situation is the introduction of the tabernacle. That was the incident. That was a new phenomenon, new era is beginning in the lives of Israel, where they're going to have this Ark of Covenant, a tabernacle. That is just then it was introduced. और देखिए इस घटना में पहली बार जो है मिलाप वाला तंबू या वाचा का संदूक, ये सारी चीजें अस्तित्व में आई थी और इसका जो स्थापना या शुरुआत वहां पर किया गया था, उस समय ये घटना घटी है। And then the children of Aaron, sons of Aaron, Nadab and Abihu, and they did some mischief. They offered a different fire instead of the proper one. God's judgment came upon them. और यहाँ पर जो हारून के 2 पुत्र थे, नादाब और अबीहू, उन्होंने कुछ ऐसा काम किया जिसके कारण परमेश्वर का दंड या न्याय उनके ऊपर आया। God took it very serious. परमेश्वर ने उनका जो काम था उस ऊपरी आग को लाना, उसको बहुत ही गंभीरता से लिया। Because that was the beginning of an era, beginning of a new
period in the salvation history that just then they came out of Egypt and they're beginning their journey. और वो जब अपने उस यात्रा को आरंभ कर रहे थे, उस समय ये मिलाप वाले तंबू और तमाम बातों की शुरुआत थी, इसलिए परमेश्वर ने इन बातों को बड़ी गंभीरता से लिया वहां पर। Yeah. God very clearly said in verse 3, among those who are near me, I will be sanctified, and before all the men, I will be glorified. So God will not compromise about his holiness, his sanctity, and his glory. यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर ने प्रकार से कहा कि जो मेरे समीप आए वो मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। तो परमेश्वर की आराधना में वो पवित्रता और गंभीरता होना जरूरी है। And there is another incident in Joshua's 7th chapter. और यहोशू की किताब उसके 7वें अध्याय में एक और घटना को हम देख सकते हैं। Yeah, let us read book of Joshua. यहोशू की किताब उसका 7वां अध्याय chapter 7 first verse onwards. 7 अध्याय 1 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। परंतु इजरायलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया, अर्थात यहूदा गोत्र का आकान जो जेरा वंशी जब्ती का पोता और कर्मी का पुत्र था, उसने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का कोप इजरायलियों पर भड़क उठा। Look at that verse. God, the Lord burned against people of Israel. The anger of the Lord burned against Israel. We know the story, the sin of Achan. He deceptively kept some impure thing which he was not supposed to do that. He protected, he kept it in his pocket somewhere secretly, and God punished it, God judged it. यहाँ पर हम आकान नाम के व्यक्ति के पाप के बारे में देखते हैं, जिसने कुछ ऐसी सोने चांदी की चीजों को छुपा करके रखा था, उस पाप को किया और परमेश्वर ने उस गुप्त रीति से छुपाने के कारण जो है उसको वहां पर एक परमेश्वर की आग या कोप भड़क उठा उसके जीवन में। So definitely it was also new. We all know that they were just about to enter. They crossed the Jordan, and they were about to enter the promised land. That time God has shown them again, I am a holy God. I will not entertain or I will not accept any such misbehavior. और यहाँ पर भी हम देखते हैं यरदन नदी वो पार कर चुके थे और कनान के देश में प्रवेश करने वाले थे। एक नया समय शुरू होने वाला था, इसलिए परमेश्वर ने उनके बीच में उस न्याय को यहाँ पर प्रदर्शित किया है। So there also we saw that Achan was being killed by throwing stones. और यहाँ पर आकान को हम देखते हैं पत्थरवाह करके उसे मार डाला गया। And here again we see in the book of Acts chapter 5, at the beginning of a new era, just then church has born, just then church was going on. God wanted to show about his holiness and about his glory and how he cannot accept any misbehavior. और प्रेरितों के काम 5 अध्याय में भी उसी बात को देखते हैं। परमेश्वर यहाँ एक नया काम कलीसिया की स्थापना किया है, उसकी महिमा, उसकी पहचान के खिलाफ कोई भी ऐसा पाप को वो बर्दाश्त नहीं करेगा। यहाँ पर इस बात को हम देखते हैं। So what we see here in these 4 chapters and 5th chapter here was God's power was displayed, God's grace was displayed, and God's wrath, God's judgment, and God's fear is displayed here. तो ये शुरू के 5 अध्याय में हमने क्या देखा कि परमेश्वर की सामर्थ का प्रकटीकरण होता है, परमेश्वर के अनुग्रह का प्रकटीकरण होता है, और इस अध्याय में देखते परमेश्वर के क्रोध या उसके न्याय का प्रकटीकरण यहाँ पर होता है। So brothers and sisters, when we understand God, when we speak about God, when we are thinking about God, we need to bear all these things in mind. Sometimes we overemphasize only on God's power, or sometimes we only overemphasize on only God's grace, and sometimes we forget about God's fear. और मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के बारे में बात करते हैं, इन तीनों बातों को हम ध्यान रखें। कई बार हम लोग केवल परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में ही बात करते रहते हैं, कई बार हम परमेश्वर के उस सामर्थ्य के बारे में बात करते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर के न्याय के बारे में भी ये तीनों बातों को हमें याद रखना है जब हम परमेश्वर के बारे में बातचीत आपस में करते हैं। ब्रदर वॉइस नहीं आ रहे हैं। सर वॉइस इज नॉट।
Yeah, let us be careful even when we present about God, when we speak about God, when we preach about God, let us present all the characteristics of God. जब भी हम परमेश्वर के बारे में बातचीत करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें या उसकी सेवा करें, इन सारी बातों को जो परमेश्वर के स्वभाव के बारे में है, उसको हम जरूर से ध्यान में रखें और प्रस्तुत करें। So we cannot, misrepresent God. हमको कभी भी परमेश्वर को गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं करना है। Yeah, that's not safe. और वो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। I think this is a great lesson for most of us, like preachers and pastors. We need to speak, we need to tell people about the fear of God. और ये मैं सोचता हूँ जो पास्टर्स और प्रचारक लोग हैं, उनके लिए एक बहुत ही बड़ा संदेश है कि मैं परमेश्वर के भय के बारे में आज हमें प्रचार करने की आवश्यकता है। Yes. So now, God wanted to keep up His dignity, His glory, His standards. We cannot take for granted. We should not think that whatever we do, God will okay it. No such understanding. तो परमेश्वर अपनी महिमा को, अपने स्वभाव को, अपने चरित्र को बना कर रखता है। हम ऐसा नहीं कह सकते जो भी हम करेंगे चल जाएगा। ऐसी मानसिकता बिल्कुल गलत है। परमेश्वर के सामने ऐसा नहीं चलेगा। See, look at it as a result of their disobedience, because of their pride, their lie, their wickedness, their lie to the spirit, the church. They should have, Ananias and Sapphira should have the fear of the church. Church is an important thing. It is God's, pride. That is how they should have feared. When they took it easily, they came under the wrath. They came under the judgment of God. देखिए, कलीसिया जो है वो परमेश्वर की दुल्हन है, यीशु मसीह की दुल्हन है। उनके अंदर परमेश्वर का भय, परमेश्वर की पवित्रता और विश्वास होना चाहिए। पर हनन्याह और सफीरा ने क्या किया? झूठ बोला प्रेरितों से, पतरस से, कलीसिया से। इसलिए परमेश्वर का न्याय उनके जीवन में आया। They were dead. They were killed. They had to receive that severe, such a severity of the punishment to the extent of death. और वो परमेश्वर के द्वारा मार दिए गए, उनका न्याय किया गया, उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार का उनका न्याय हुआ। So I'm really, very, very frightened to preach or to study on this. Many a times, how many times we do that, cheating or deceiving, lying, pride, all these things. और इस प्रकार से हम प्रचार करते हैं, बड़े ही एक भयभीत करने वाला विषय है। कई बार हम भी कितने बार हमने झूठ बोल देते हैं, या हम गलत बातें बोल देते हैं, या हम परमेश्वर के भय नहीं मानते हैं। ऐसा हमारे साथ भी कई बार होता है। So let's think about Peter now. What Peter did and how he did what he did. Let's dwell little time on Peter. थोड़ी देर हम लोग जो है पतरस पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। परमेश्वर ने क्या बोला, किस कारण से बोला, इस बात को हम देखें। He had such boldness and courage to speak to Ananias and Sapphira straight. और उसके अंदर एक बड़ी मजबूती थी कि हनन्याह और सफीरा से वो सीधे तौर पर मजबूती से बातचीत करे। And in front of everybody, he had that conversation. He spoke to them very direct and very straight. और सारी कलीसिया के सामने, सारे लोगों के सामने हनन्याह और सफीरा से उसने सीधे तौर पर बातचीत किया। Now I'm just thinking, how many of the preachers and pastors today have that courage and boldness to speak like that? आज मैं सोचता हूँ कितने ऐसे प्रचारक हैं, पासवान हैं, जिनके पास सीधे तौर पर सच्चाई को कहने का इस प्रकार का साहस पाया जाता है। When we know that something wrong is going on in our churches and our fellowships, जब इस बात को जानते हैं कि हमारी कलीसिया में कुछ गलत हो रहा है, can we have that courage and boldness to speak it out? तो क्या हमारे पास वो हियाव और सामर्थ्य है उस गलत के खिलाफ में बोलने के लिए? So it is also a very important, serious matter and serious issue. और ये बहुत ही गंभीर विषय है, गंभीर बात है परमेश्वर की कलीसिया में। I don't know whether Peter was very angry in saying that, or Peter was very humble, very gentle in communicating the truth. मुझे नहीं मालूम पतरस जब इस बात को बोल रहा था, बहुत गुस्से से वो बोल रहा था या बहुत ही नम्रता से, मुझे इस बात के बारे में नहीं मालूम। But whatever it is, Peter has communicated the truth. He spoke what is right and what is correct.
लेकिन जिस प्रकार से भी बोला हो, लेकिन पतरस ने सच के बारे में बोला है कि उन्होंने क्या गलती किया, उस सच को नहीं छुपाया है। Of course, we know that it is a very peculiar and special event or incident that took place in the history of the church. Not every day, not every time that did not take place. और ये जो घटना है, ये केवल एक बार होने वाली विशिष्ट घटना है। हर दिन हर बार ये घटना नहीं होती थी। एक विशेष नए कलीसिया में पहली बार ये घटना और बहुत ही विशेष रूप से हुई थी। Yeah, even when we speak like that, also occasionally, also at least, we need to be addressing, we need to be communicating about God's holiness and about God's truth and about God's fear. यद्यपि ये घटना बहुत ही कम होने वाली घटना है, फिर भी हम परमेश्वर के बारे में जब भी बोलते हैं, उसके न्याय, उसकी पवित्रता और उसके भय में रहकर इन बातों को हम बोलें। If we don't do that, we as preachers and pastors, we are at fault. यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, तो हम जो प्रचारक और पासबान हैं, हम गलती पर हैं। This is the kind of mistake that priest Eli has done with his children Hophni and Phinehas. That's what we read in book of Joshua. और यही वो गलती है जो हम एली के बारे में पढ़ते हैं। होप्नी और पिनहास के उन्होंने जिस प्रकार आज्ञा नहीं दिया। Not in the book of Joshua, in the book of Judges. Yeah. So न्यायों की किताब में, First Samuel, brother, I think. Yeah, book of Judges. So let us please try to understand what kind of responsibility is lying on our shoulders whenever we hold this Bible, whenever we go to the pulpit. इस बात को हम जाने मेरे प्रियो, हमारे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी और है जब हम परमेश्वर के वचन को लेकर परमेश्वर की कलीसिया में खड़े होते हैं। We need to present the whole truth to the whole church. We cannot present only some lessons which we like. Maybe about grace, about love, about forgiveness, about mercy, about healing, about miracles all the time. No. हमें परमेश्वर के संपूर्ण सत्य को सारी कलीसिया के सामने रखना है। केवल अनुग्रह के बारे में कुछ एक बातों को लेकर जो हमें पसंद है, इस प्रकार हमें प्रचार नहीं करना है। Sometimes some preachers will be all the time talking about the miracles, the healings, the what you call that prosperity gospel, blessings. Every time that message only. Every message, every time, only this. कई ऐसे पासबान प्रचारक है जो हर समय केवल चमत्कार, चंगाई या ऐसे करिश्माई बातों को करते हैं। केवल उनका यही संदेश होता है हर समय। Or sometimes there are some preachers who preach only about the judgment, always curses, always about judgment, only about fear. कई ऐसे पासबान है जो कई बार हमेशा न्याय केवल यही बात करते हैं। वो हमेशा भय की बात करते हैं। So that is also not good. Any extreme is not safe. और किसी भी प्रकार से अति संयोक्ति या बढ़ा चढ़ाकर किसी चीज को लेकर जाना वो सही नहीं है, सुरक्षित नहीं है। So we need to be balanced and we need to be holistic in preaching both the things. Preach about the love, mercy, grace of God. Also preach about God's characteristics, about His holiness, wrath, judgment. हम जब प्रचार करते हैं, हमें संतुलित होना है, हमें संपूर्ण बातों को लेकर चलना है। परमेश्वर के अनुग्रह, दया, प्रेम की हम बात करते हैं, अच्छी बात है। साथ ही साथ परमेश्वर के न्याय और क्रोध और उसके भय की भी हम बातचीत करें। So let us preach, let us present the totality of God's character and God's nature and God's personality to the people. तो मैं और आप जब प्रचार करें तो परमेश्वर की संपूर्णता का, उसके संपूर्ण अस्तित्व का, उसके संपूर्णता का हम प्रचार करें प्रभु के लोगों के सामने। If brothers and sisters, if this kind of scenario happens today in our churches, I'm not sure how many of us will be alive. मेरे प्रिय भाई बहनों, इस प्रकार की घटना यदि हमारे कलीसिया में हो, इस प्रकार का न्याय हो, मुझे नहीं मालूम कि हमारे कलीसिया में कितने लोग जीवित बचेंगे। If God exercises this kind of judgment on all of us, like how He did with Ananias and Sapphira, I may not be alive. I don't know. यदि परमेश्वर इस प्रकार का न्याय हमारी कलीसिया में मेरे साथ करे, हमें नहीं मालूम, हम अनन्या सफीरा के समान अगर तो हम जीवित ही ना बचे, हम ऐसा हो सकता है। Need to be careful. हम बहुत ही ध्यानपूर्वक रहें। Let us introspect our own lives, our own hearts. Are we wicked? Are we lustful? Are we deceiving?
Are we taking the side of the deceptive Satan? Let's be careful. हम इस बात में सावधान रहें कि क्या हम धोखा देने वाले हैं, या भ्रम में आने वाले हैं, या शैतान के बहकावे में आने वाले हैं, या हम दुष्ट हैं। ऐसा तो नहीं हमारे जीवन में। If you do not yield to him by direct attacks, he will come in a very deceptive way, like a serpent, how he came to Eve in the Garden of Eden. जब शैतान जो है सीधे तौर पर हमला नहीं कर पाता है, अंदरूनी रूप से जिस प्रकार अदन की वाटिका में आया था, उसी प्रकार वो कलीसिया में और विश्वासी के जीवन में कार्य करता है। So that's why, as believers, as children of God, we need to be always prepared, be very watchful, and be very alert. These are the key words. और एक विश्वासी होने के नाते हमेशा बहुत ही सावधान रहना है, सतर्क रहना है। इन बातों को बिल्कुल हम गांठ बांध लें। Yeah, even the Lord Jesus also spoke or mentioned about watchfulness, being watchful and being careful and being alert. यीशु मसीह ने भी बार-बार इस बात का इस्तेमाल किया, जागते रहो, सावधान रहो। We cannot think that I will not be tempted, or I will not yield to Satan's temptation. I will be very strong. None of us can think like that. हम में से कोई भी ऐसा नहीं कह सकता, मैं तो बहुत मजबूत हूँ, मुझे शैतान बहका नहीं सकता है। इस प्रकार के हम गुमान में ना रहें। These days we are hearing, we are listening many stories how big leaders have fallen the grace of God. आज हम ऐसी कई बातों को सुन रहे हैं इस दुनिया में कि बड़े प्रभु के दास लोग जो हैं वो अनुग्रह से नीचे गिरते जा रहे हैं। So brothers and sisters, let us be careful in all areas. Why we don't know in which area we may fall. मेरे प्रिय भाई बहनों, हर एक क्षेत्रों में हम सावधान रहे। हमें नहीं मालूम किस क्षेत्र में शैतान काम करेगा और हम गिर जाएंगे। It could be like this lust of money, more desire for money. I want money all the time. This could be this temptation. हो सकता है एक पैसे का प्रलोभन हमारे जीवन में, हर समय हम पैसे और पैसे के बारे में सोचते रहे, ये भी गड़बड़ी हो सकती है। Or it could be the lust of the world, lust of the eyes, okay, where we want to have more and more and more, the more world in our lives. या फिर एक सांसारिक या फिर आंखों के अभिलाषा की बातें, हम ज्यादा से ज्यादा सांसारिक चीजों को अपने जीवन में देखना और आनंद मनाना चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। Or it could be lust of position and power. I want to be the top person. I want to be recognized by everybody. That's what Ananias and Sapphira did. You know, by doing that, they wanted to get the recognition. So some of us are very lustful about power and position and being seen by people, that recognition aspect. या फिर हो सकता है हनन्या और सफीरा के समान हम दुनिया से मान सम्मान और एक पहचान और इस प्रकार की हम आकांक्षा करें जिसके कारण हम परमेश्वर के अनुग्रह से हम नीचे चले जाएं। Or sometimes, as most of the preachers mention, about our relationship with the opposite sex. और कई बार एक अन्य लिंग के साथ हमारा जो संबंध है स्त्री पुरुष का, उस संबंध में भी हम गिर सकते हैं। How brothers are relating with sisters and how sisters are relating and maintain their relationship with opposite sex, with brothers. और भाई लोग जो हैं, जो प्रचारक हैं, बहनों के साथ किस प्रकार से व्यवहार करें, और बहनें जो हैं प्रचारिका हैं, भाइयों के साथ किस प्रकार से रहें, इस बात में भी हम गिर सकते हैं। We already know that many pastors and preachers are guilty of this sexual sin. और बहुत सारे जो पासबान प्रचारक हैं इस प्रकार के पाप में फंस चुके हैं और वो गड़बड़ी हो चुकी है। Even in our fellowships, Christian fellowships and Christian churches, we need to be very clear, very clear about how you are relating with the opposite sex. और हमारे कलीसियाओं में भी हमें संगति में इस प्रकार से विशेष ध्यान देना है कि विपरीत लिंग वाले व्यक्ति के साथ हम किस प्रकार से बातचीत करते हैं, संबंध रखते हैं। Please be very careful about this phone. और ये मोबाइल फोन के बारे में भी बड़े सतर्क हम रहें। After this mobile phone has come, because of the WhatsApp, we hear that many people are sending unnecessary text messages to this, in between this opposite men and women. Unnecessary things are happening. और इस मोबाइल के अंदर हम जानते हैं बहुत सारी ऐसी चीजें आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, इसमें एक स्त्री और पुरुष के बीच के संबंध के बारे में बहुत सी गलत चीजें हम समझ सकते हैं। Some men will be all the time will be sending WhatsApp messages and text to the women, and some women will be doing the same thing to the men. और कई पुरुष जो है हमेशा स्त्रियों को
व्हाट्सएप मैसेज भेजते रहते हैं, तो कई स्त्रियां पुरुषों को भी इस प्रकार से संदेश जो है व्हाट्सएप के द्वारा भेजते रहते हैं। I suggest you better use it very less, very less as far as possible, particularly this WhatsApp. This is taking a lot of time. और मैं आपको सुझाव दूंगा, आप इसका इस्तेमाल कम से कम करें, और ये आपके समय को भी चुराता, आप समय इसमें जितना कम करें उतना हमारे लिए अच्छा होगा। Even earlier also, I used to use more time with WhatsApp. Now I have reduced. I feel I still must reduce using WhatsApp. और आज मैं जो है पहले से बहुत ही कम व्हाट्सएप का इस्तेमाल करता हूं, पर मुझे लगता है कि और भी मुझे कम करना है। मुझे ऐसा महसूस होता है। Even if it is not opposite sex relationship, but it is taking a lot of time. That videos, WhatsApp texting and all, WhatsApp groups, it is killing our time. It's time wasting. और हो सकता है ये कोई गलत संबंध के बारे में ना हो, लेकिन फिर भी हमारे समय को चुराता है। बहुत सारे ग्रुप्स है, बहुत सारी बातें हैं, हमारे समय को लगातार ये बर्बाद करता है। We do not know in which way, in which area this deceptive serpent will deceive you. हम नहीं जानते किस मार्ग से, किस तरीके से ये जो दुष्ट शैतान है, जो सर्प है, हमारे जीवन में प्रवेश करेगा। So I mentioned few areas, but there could be more areas where we'll be tempted, where we'll be yielding to the temptation. मैंने कुछ बातों को आपके सामने रखा है, पर और भी क्षेत्र हो सकते हैं जहां पर इस प्रकार के कार्य शैतान कर सकता है हमारे जीवन में। And now let's go forward. We have हम लोग और आगे बढ़ेंगे। Yeah, we have seen this is the first bad incident, bad example, bad attack that came upon the church in the early church. और आरंभिक कलीसिया में पहला जो शैतान का आक्रमण या पहली असफलता, इस प्रकार की बातों को हमने इस 5वें अध्याय की शुरुआत में हमने देखा। But it's very sad, death happening in the church because of sin, and and another worst scenario. Ananias was buried, and later without the knowledge of the wife, and again Sapphira also was buried later. और एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि परमेश्वर की कलीसिया के अंदर पाप के कारण लोगों की मृत्यु हुई, और न केवल हनन्याह इस प्रकार से मारा गया, उसकी पत्नी भी झूठ बोलने के कारण बाद में उसको भी दफना दिया गया। When we think of the meaning of their names, it is quite surprising. The meaning of Ananias is gracious, and the meaning of Sapphira is beautiful. Gracious and beautiful. Nice names. ओके, हनन्याह और सफीरा के नामों का मतलब यदि हम देखें, हनन्याह का मतलब था अनुग्रह से भरा हुआ, और सफीरा का मतलब है बहुत ही सुंदर। उनके नामों को देखिए और उनके कामों को हम देखें। See, those people are having such beautiful, nice names, gracious and beautiful, and they became very bad example in the early church. और जिनका नाम बहुत ही अच्छा था, अनुग्रह से भरा हुआ और सुंदर, उन्होंने परमेश्वर की कलीसिया में एक बहुत ही बुरा उदाहरण प्रस्तुत किया। So that's why God has given us in that armor of God, Ephesians 6 chapter 10 to 20. God has given us that armor to protect ourselves against every kind of temptation. और इसलिए परमेश्वर ने इफिसियों 6 में जो हम पढ़ते हैं, हमें आत्मिक हथियार दिए हैं अपनी सुरक्षा के लिए, शैतान के फंदों से बचने के लिए। And now we read verse 11, 5th chapter, book of Acts. The great fear came upon the whole church and upon all who heard of these things. प्रेरितों के काम 5:11 में हम पढ़ते हैं, सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। Now I want to stop all of you and ask a question. When such a thing happens, what could be the next thing that happens to the church? What can we expect? What kind of things will happen in the church when such thing has happened? When two people died, but sin is punished, sin is, God's wrath has come. Now, what kind of things can you expect about the church? Do you think church will be closed? और आप क्या सोचते हैं कि जब इस प्रकार की घटना घटी, हनन्याह सफीरा का न्याय हुआ, उसके बाद कौन सी घटना घटी होगी? क्या चर्च को बंद कर दिया गया होगा डर के कारण से? क्या हुआ होगा? हम क्या सोचते हैं इसके बारे में? Imagine. I want you to imagine. Use your imagination. और मैं चाहता हूं कि आप सोचें। Suppose in the church that where you are going every Sunday, if this kind of incident has taken place because of sin, one couple were killed by God, and such a thing has happened, what do you think will happen to your church in your place?
सोचिए आपकी कलीसिया में अगर एक ऐसा परिवार है जो किसी पाप के कारण परमेश्वर के दंड का भागी होता है, तब आपकी कलीसिया में अगले संडे क्या होगा या क्या परिणाम होगा उसका? Yeah. Now let us read verses 12 to at least 14. Or maybe अब हम लोग we will read up to 16, no problem. Brother Praveen, would you please read from 12 to 16? Please read. अब हम इसके आगे की घटना पढ़ेंगे 12 से लेकर 16 तक। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे और वे सब एक चित होकर सुलेमान के ओसारे में इकट्ठे हुआ करते थे। परंतु औरों में से किसी को यह हियाव ना होता था कि उनमें जा मिले, तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे। विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे, यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला ला कर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। It's very interesting to see what had happened. You know, very surprising. In the Bible, it tells us in verse 12, it says in English, now many signs and wonders were regularly done among the people by the hands of apostles, and they were all together in Solomon portico. There are two things in verse 12 in English. One thing is signs and wonders were regularly done every day. And secondly, everybody was there in the church. Everybody gathered in the church. दो बातें हम देखते हैं इस घटना के प्रभाव के कारण जो बड़ी रुचिकर देखने में है। पहली बात, प्रतिदिन लगातार चिन्ह और चमत्कार अद्भुत काम दिखाए जाते थे प्रेरितों के हाथों से। दूसरी बात, सब लोग एक मन होकर सुलेमान के ओसारे में मंदिर में इकट्ठा हुआ करते थे। दो बातें यहाँ पर हम देखते हैं। And verse 13, also has two dimensions there. It says, none of the rest dared join them, but people held them in high esteem. One thing, people got afraid to join these people. And secondly, people also started respecting them. They held them in high esteem. The people outside the church started respecting the people who are in the church. 13वें वचन में भी दो बातें हम देखते हैं। पहली बात, लोगों के अंदर भय समा गया था, उनमें मिलने से डरते थे, लेकिन जो कलीसिया के लोगों की बड़ाई करते थे, उनके प्रति उनका आदर वो बढ़ गया था बाहर के लोगों का कलीसिया के प्रति। And verse 14, and more than ever believers were added to the Lord, multitudes of both men and women. More than ever, unlike never it happened earlier like that. More people joined the church and multitudes of both men and women came to the church. और पहले से भी कहीं ज्यादा जो विश्वास करने वाले पुरुष और स्त्रियां हैं प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में वो मिलने लगे और वो प्रभु में जुड़ने लगे। And 15 and 16 about the miraculous things what had happened, the ministry part, that is 15 and 16. और 15 और 16 में सेवकाई के बारे में जो हम देखते हैं वो ये बात है। So now let us study, brothers and sisters. Sometimes we may think or we may be afraid. That's why I asked that question: what will happen in your church if this such kind of thing happens? People, we might sometimes think church may be closed. Nobody will come to church. Okay, that kind of thinking or thought may come to our mind. इस प्रकार का विचार हमारे जीवन में आ सकता है कि अगर ऐसी घटना घटेगी तो हमारी कलीसिया बंद हो जाएगी, इसलिए इस प्रश्न को पूछा गया था। देखिए यहाँ पर बिल्कुल उल्टा होता है। Yeah, but that's not what happened. That's not what had happened here. Verse 12, 13, 14 is telling us church gained more respect. And believers were all united. They were all still there in the church. Nobody left the church. And more unity, more magnanimity, and more glory, and more multiplication. Church was growing, unlike never before. And multitudes of men and women were joining. New people are coming to the church. Amazing. यहाँ पर हम देखते हैं कलीसिया के प्रति जो आदर लोगों का बढ़ता है, प्रभु का भय बढ़ता है, लोगों में एकता आपस में बढ़ती है और पहले से भी कहीं ज्यादा नए लोग आकर कलीसिया में जुड़ते हैं जो पहले कभी भी नहीं हुआ था। I think the Spirit of God is teaching us
though people like us, pastors and preachers and leaders, we should not hesitate to discipline the sin and the disobedience in the church. अब मैं सोचता हूँ पवित्र आत्मा हमें प्रभु के दासों को यह सिखा रहा है कि कलीसिया में जो न्याय की जो बात है उस बात को रखने में हमें बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं चाहिए एक प्रचारक या पास्टर के रूप में. Many times as pastors we think what we think, suppose if I discipline you, if I say that what you are doing is not right, from tomorrow onwards you will stop coming to the church, you will not come to the church, and the number of the church may go down. That's what we think as pastors. और कई बार हम पास्टर्स लोग क्या सोचते हैं, अगर हम किसी से कह दें कि ब्रदर आप ये गलती कर रहे हैं, वो व्यक्ति चर्च में आना बंद कर देगा, कलीसिया की संख्या कम हो जाएगी. इस प्रकार का हमारा विचार होता है कलीसिया के लिए. But I think we are wrong in thinking like that. लेकिन इस प्रकार से सोचने में मैं सोचता हूँ कि हम लोग गलत हैं. When you discipline and when you speak the truth as it is, the other way around will happen. The church will grow. The church will get more respect and more people will come to the church. That's what we read here. लेकिन जब हम सच्चाई की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं और गलत को गलत कहते हैं, तो हमारा जो कलीसिया का अनुशासन और उसका पहचान बढ़ता है और ज्यादा लोग कलीसिया में आकर जुड़ते हैं. Yeah, Uday Ban Yadav mentioned it is a major thinking in North India, brother. It is not only in North India, it is also in South India and in Hyderabad. ये ब्रदर ये जो सोच है ये सभी जगह इस प्रकार की सोच है, एक जगह की बात नहीं है. That is why many pastors are not speaking the truth from the pulpit. और इसलिए बहुत सारे पासबान पुलपिट से सत्य को कहना नहीं चाहते हैं. They are not condemning the sin. They are not speaking straight and strict about sin. We are not doing it. और पाप के बारे में एक चेतावनी देना या चेताना इस प्रकार की बातें पुलपिट से बहुत कम होती है. I think we need to change our attitude and change our perspective about this. इस विषय में हमारी सोच और हमारा तरीका हमें चेंज या परिवर्तन करने की आवश्यकता है. There will be cleansing taking place in the church and there will be purity and holiness prevailing in the church. और इस प्रकार कलीसिया में एक शुद्धिकरण को हम देखते हैं और पवित्रता की और इस प्रकार की बातों की स्थापना जो है वो कलीसिया में होती है. And 15 and 16 will tell us more miraculous things were happening. And Peter, when he was walking on the street, people brought sick people to him, and when his shadow fell on them, some of them got healed. 15 और 16 वचन में पढ़ते हैं और ज्यादा चिन्ह और चमत्कार वहां पर होते थे और पतरस की छाया भी जब लोगों पर पड़ती थी और वो चंगे हो जाया करते थे. So the church grew from strength to strength and it multiplied in their activities and the church became very strong. और कलीसिया जो है संख्या में बढ़ते चले गए और सामर्थ्य में और सारी बातों में और इस प्रकार से कलीसिया की उन्नति होती चली गई. Yeah. So about the miracles and the signs and wonders, we will learn few things here again. और चिन्ह और चमत्कार के बारे में कुछ बातें यहाँ पर हम सीखने की कोशिश करेंगे. See, a while ago I gave you the historical background of God's judgment, how God judged sin very severely. और इस प्रकार मैंने इतिहास से कुछ घटनाओं को बताया कि परमेश्वर किस प्रकार पाप पर न्याय करता है गंभीर रूप से. Like we studied about Nadab and Abihu, and we also studied about Achan. हमने नादाब और अबीहू के बारे में पढ़ा, अकान के बारे में हमने पढ़ा. Yeah, now we will see how signs and miracles, wonders have done again in the biblical history in the past. और अभी हम थोड़ी देर देखेंगे किस प्रकार चिन्ह और चमत्कार अद्भुत रीति से प्राचीन समय में, पुराने समय में भी किए गए बाइबल के अंदर. So brothers and sisters, I am encouraging you to understand that when you are reading the Bible, we need to understand the historical context, how history has been developed. और जब हम बाइबल को पढ़ते हैं हम इस बात का मनन करें और समझें किस प्रकार से इतिहास जो है वो आगे बढ़ा है. For example, now we are talking about the signs and wonders. For example, we see signs and wonders in the book of Exodus, not much in the book of Genesis. और जिस प्रकार हम उत्पत्ति की किताब में चिन्ह चमत्कार के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ते हैं, लेकिन निर्गमन की किताब में हम चमत्कार के बारे में काफी कुछ पढ़ते हैं. In the book of Exodus, what we see was there was a lot of
bondage. People were in Egyptian bondage for 430 years, and then they were coming out. That was a new era again in the life of the history of people of Israel. That time by Moses, there was many wonders and signs. At least 10 signs has taken place. और जब हम निर्गमन की किताब में पढ़ते हैं, इजरायली जो है मिस्र में लगभग 400 साल से गुलाम थे। परमेश्वर ने वहां से उन्हें आजाद किया, बंधनों से छुड़ाया, और तब उनके बीच में परमेश्वर ने अद्भुत काम, चिन्ह और चमत्कार किया, क्योंकि एक नए युग का परमेश्वर ने शुरुआत किया था। So Moses time, Moses period was one important historical development, historical phase. God has done some wonders and miracles, signs that time. तो मूसा का समय जो है इतिहास में एक नए युग का शुरुआत था, इसलिए परमेश्वर ने कुछ अद्भुत कामों को वहां पर चिन्ह चमत्कार के रूप में किया है। And the next such period is the period of the prophets. और दूसरा ये समय जो था वो भविष्यवक्ताओं का समय था, उस रूप में आया। During the time of Elijah and Elisha, we again see a lot of wonders, miracles taking place. एलिया और एलिसा के समय बहुत सारे अद्भुत काम, चिन्ह और चमत्कार को उनके सेवकाई में हम लोग देखते हैं। We know that Elijah have done 7 and Elisha has done 14, double. हमने देखा कि एलिया ने 7 आश्चर्य कर्म किए थे, जबकि एलिसा ने 14, उनका 2 गुना आश्चर्य कर्म किए थे। So that was again the beginning of the prophetical era, prophetical period, and God has done some miraculous things, spectacular things. क्योंकि वो एक नए युग की शुरुआत थी, इसलिए परमेश्वर ने कुछ अद्भुत चिन्ह और चमत्कार वहां पर होने दिए और किए थे। And again, now that's why we don't see much miracles during the prophets of Habakkuk or Micah or Obadiah or Malachi, Zechariah, Zephaniah. Though they're all prophets, we don't see many such miraculous, spectacular things happening during that time, but only in the time of Elijah and Elisha. एलिया और एलिसा के समय में जो हम लोग आश्चर्य कर्म देखते हैं, उस प्रकार के आश्चर्य कर्म बाकी भविष्यवक्ता जैसे हबक्कुक, सपन्या, ओबदिया के समय नहीं देखते हैं, क्योंकि वो भविष्यवक्ता युग की शुरुआत थी, इसलिए वहां पर इस प्रकार के आश्चर्य कर्म प्रभु ने किया था। So there in the Egyptian bondage, miracle coming out of Exodus, that time, here the prophetical time, and now we come to the New Testament time, the period of Jesus Christ. निर्गमन की किताब में बंधनों से छूटकर इजरायली आए थे, वहां पर चमत्कार हम देखते हैं। भविष्यवक्ताओं के समय एलिया, एलिसा के समय, और यहाँ नए नियम में प्रेरितों के काम में अद्भुत चमत्कार की, चंगाई की बातों को हम देखते हैं। So now Jesus period again is a new period altogether, totally different period. New era is beginning with the Lord Jesus Christ. New Testament is beginning. और जब नया नियम शुरू होता है यीशु मसीह के समय में, वहां पर एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत होती है, इसलिए वहां पर भी इन बातों को हम लोग बहुत ऐसे देखते हैं। And now again during the early period of the church, again we see that many miracles happening. और अरबी कलीसिया के समय भी हम देखते हैं इस प्रकार बहुतायत से अद्भुत काम वहां पर किए जाते थे। Yeah, but now let us see why miracles should happen and what is the message of miracles and wonders. अब यहाँ पर हम इस बात को सीखेंगे कि आश्चर्य कर्म क्यों होते थे और आश्चर्य कर्म होने का उद्देश्य क्या है, क्या कारण है। The first thing is it is always addressed with a human need. It is a compassionate activity. Whenever there was a human need, miracle has taken place. Number one. और जहां पर भी मनुष्य की आवश्यकता थी, वहां परमेश्वर ने तरस से भरकर उनके लिए आश्चर्य कर्म किया है। पहली बात तो ये है। Yeah, see like that we see Acts 3, we say that beggar, the lame beggar who has been like that out of need, that man was very helpless, vulnerable, so God did a miracle in his life. तो हम तीसरे अध्याय में जैसे कि हमने देखा एक लंगड़े भिखारी के बारे में, बिल्कुल असहाय था, अकेला था, परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म करके उसके जीवन में एक आशीष को दिया है। The second thing is to display the spiritual glory and spiritual power of God. और दूसरी बात है परमेश्वर की सामर्थ और उसकी आत्मिक महिमा का प्रकटीकरण करने के लिए भी परमेश्वर चमत्कार होने देते हैं। People should know how powerful, how great our God is. People will come to know by that activity, by that miracle, by that healing. People will realize the greatness of God, the glory of God. उस घटना के द्वारा या चंगाई चमत्कार के द्वारा बाकी लोगों को समझना है कि परमेश्वर जिसके हम आराधना करते हैं वो कितना महान और सामर्थी परमेश्वर है।
particularly about the Lord Jesus Christ, how the Lord Jesus Christ is a powerful God. और किस प्रकार यीशु मसीह एक सामर्थी परमेश्वर है, उस बात को लोगों को जानना है, इसलिए चंगाई होती है। Thirdly, the miracles and the wonders and the signs also will convey a spiritual truth. Some teaching will be there. और कुछ आत्मिक सत्यों का भी ये उद्घाटन करते हैं कि इसके पीछे में क्या उद्देश्य था, क्या इसमें कुछ आत्मिक सत्य भी है। The miracle will tell us something about God. There will be learning. We know, of course, that we already mentioned the second point, that's the glory about God and power of God. But there also will be some spiritual truth that we understand about God. Both 2 and 3 are interlinked. और इसे हम दूसरे भाग में भी हमने देखा, उसी प्रकार जो है घटना के द्वारा हम परमेश्वर की कुछ सत्यों के बारे में जानते हैं, कुछ आत्मिक प्रकाशन हमको मिलता है, वो भी हम इस बात को देखते हैं। So these are the purposes of the miracles or the signs and wonders. और ये जो अद्भुत काम, चिन्ह और चमत्कार होते हैं, उसका उद्देश्य ये है। The first thing is based on the human need, and second is display of the power of God, glory of God, and third is some spiritual lesson and spiritual truth and spiritual teaching takes place. और हमने 3 बातों को यहाँ पर देखा है। पहली बात मनुष्य की आवश्यकताओं के लिए पूरा करने के लिए होते हैं, दूसरी बात परमेश्वर की महिमा और उसकी पहचान को प्रकट करने के लिए, और तीसरी बात कुछ आत्मिक सत्यों को प्रकट करने के लिए चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर करते हैं। For example, that God gave that 5 loaves and 2 fish feeding 5,000 people. उदाहरण के लिए प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली से 5,000 लोगों को खिलाया, उसके पीछे क्या बात थी? There was a great need. They were all in the desert. They cannot go out and have food or buy food. So there was a great human need. They were all hungry. So they needed food. तो पहली बात यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बड़ी आवश्यकता थी, लोग भूखे थे, उनके पास खाने को नहीं था। एक बड़ी आवश्यकता के कारण जो है ये घटना यहाँ पर हम देखते हैं। And when that thing has happened, people were amazed. People were magnifying, glorifying God, even at the time of that thing. Yes. तो उस घटना में हम देखते हैं कि इस चमत्कार के कारण जो है लोगों ने परमेश्वर की महिमा की, यीशु के उस महिमा को देखा, परमेश्वर की महिमा को वहां पर देखा। And the spiritual truth or spiritual teaching is that whatever little we have, when we place it in the hands of God, God will multiply, God will bless. Today I may have only 100 rupees in my pocket. I have a big need. I need 1 lakh rupees, but God will provide. That is the spiritual truth. God's provision, God's gracious provision. आत्मिक सत्य जो यहाँ पर सीखते वो ये है, हमारे पास जो कुछ भी थोड़ा है, अगर हम यीशु के परमेश्वर के हाथों में देते हैं, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। हमारे पास 100 रुपए हो सकता है और परमेश्वर के लिए हमें 1 लाख की जरूरत है, वो भी हम वो कर सकता है अगर हम उस पर विश्वास करते हैं और उसके पास हम लेकर आते हैं। We also see these 3 principles even in John 2nd chapter, turning water into wine. और गलील के काना में परमेश्वर ने जो पानी को दाखरस में बदला, उसमें भी सिद्धांत को, तीनों बातों को हम देख सकते हैं। It was a great need there. People were in need of a wine. Otherwise, there would be a big shame to the people. Organizing people. It was a big shameful time. So, basing on the human need, Jesus turned water into wine. और पहली बात जो वहां पर बड़ी आवश्यकता थी, अन्यथा जो परिवार के लोग हैं उनको बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ती, इसलिए यीशु मसीह ने पानी को दाखरस में बदला है। So God's name, how people could see this is a great man, the Son of God, the Lord Jesus Christ. His glory, His power was manifested. और लोगों ने जाना कि ये परमेश्वर का पुत्र है, और वहां पे गलील के काना में परमेश्वर की महिमा हुई। दूसरे भाग इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। And the spiritual truth, spiritual teaching, spiritual lesson there is obedience. Jesus said, "You fill the 6 barns with water," and they obeyed His instructions, and it was multiplied. Obedience was the spiritual lesson over there. और यहाँ पर जो आत्मिक सत्य हमें सीखना है वो है आज्ञाकारिता। यीशु ने कहा उन खाली घड़ों को भर दो, उन्होंने भर दिया और वो दाखरस में बदल गया। So now I want to give you an assignment. You pick up at least 3 miracles from the Bible, and you see all these 3 principles. Whenever Jesus did in all the 4 Gospels, what is the need there, and how God's power was displayed, and what is the spiritual lesson. You please write these 3 points, at least for 3 miracles. तो आपके लिए एक गृह कार्य है कि आप लोग कम से कम 3 ऐसे चमत्कारों के बारे में अध्ययन करें, और उन चमत्कारों में तीनों बातों को, कौन सी आवश्यकता थी जो पूरी हुई,
और परमेश्वर की महिमा कैसे वहां पर हुई और आत्मिक कौन सा सत्य सीखने के लिए वहां पर है, इन 3 बातों का आप अध्ययन करिए, आपका गृह कार्य है। So by next Tuesday, you please send this assignment to Brother Vijay. और अगले मंगलवार तक ये असाइनमेंट आप करके भाई विजय को भेज सकते हैं। And the next assignment is for yourself. You can do if you want for yourself. You study all the miracles that is there in the Bible. You come up with all these 3 principles. That is for yourself. और यदि अपने खुद के लिए आप एक कार्य करना चाहते हैं, वो ये होगा कि बाइबल में जितने भी चमत्कार हैं उनका अध्ययन करें और उसमें तीनों बातों को हम ढूंढने की कोशिश करें ताकि हम प्रभु के वचन में बढ़े। लेकिन आपके लिए है ये केवल। And when you study like that, when you have finished that study and all, then you can publish that book and you can become the author of a book. तो इस प्रकार का आप एक अध्ययन कंप्लीट करते हैं, पूरा करते हैं, आप एक किताब भी लिख सकते हैं और आप उस किताब के लेखक आप ही रहेंगे क्योंकि आपने उसे अध्ययन किया है। So you please do it in your language, whatever language you print, because not in English. Don't write in English, write in your language, because in your language there are not much Christian books. तो आपकी जो भी भाषा है वहां पर आप लिखें इंग्लिश में नहीं, ताकि आपकी भाषा में उस प्रकार की बात जो है वो सबके सामने आ सके। So thereby you can contribute to the church, your church, in your place. इस प्रकार आप अपने लोगों के बीच, अपनी जगह में, परमेश्वर के राज्य में कुछ कार्य आप कर सकते हैं। And finally, before we close this study, somebody asking repeat the principles. Eva Kalesh has asked. So okay, I will repeat. The first principle is, what is the need? What is the human need human situation for that miracle to take place? Why God did that miracle? What is the need over there? That is the first point. इन सिद्धांत में जो पहली बात ये है कि वहां पे मनुष्य की क्या आवश्यकता थी जिसको पूरा करने के लिए चमत्कार वहां पर किया गया। Second is how God's power was displayed, how God was manifested. दूसरी बात है वहां परमेश्वर की महिमा क्या हुई, क्या महिमा हुई और उसकी सामर्थ्य किस प्रकार प्रकटीकरण हुआ। And what God's character came out because of that thing, how God did and all. और इन सब बातों से परमेश्वर के चरित्र के बारे में लोगों ने क्या जाना। And the third principle is, what is the spiritual truth, spiritual teaching, thereby what we understand. और उस चमत्कार के द्वारा कौन सा आत्मिक सत्य वहां पर हम सीख सकते हैं, आत्मिक सत्य कौन सा वहां पर सीखने के लिए है, वो भी हम लोग देख सकते हैं। For you to understand, I will again give another example of God, Jesus bringing Lazarus out of death. एक और उदाहरण देखेंगे, लाजर का मुर्दों में से जिंदा किया जाना, इन तीनों बातों को समझने के लिए। First principle was, the need was Mary and Martha were single ladies. They needed their brother at that time. That was the human need. और पहली जो मानवीय आवश्यकता, जो पहला सिद्धांत ये था आवश्यकता का, मरियम और मार्था अकेली औरतें थी, स्त्रियां थी, उन्हें लाजर की आवश्यकता थी उस घर में एक भाई के रूप में। Second principle is, Jesus had that power to bring people back to life. Jesus is such a big God, he can bring even dead people back to life. That is the second principle about God. और दूसरा सिद्धांत जो परमेश्वर के बारे में ये था, यीशु मसीह मुर्दों को जिला सकता है, वो जीवन दे सकता है, ये उसकी महिमा प्रकट हुई वहां पर। The spiritual truth and the spiritual teaching, the third principle there is, we also will come back to life one day. Even if we die, one day we will come back to life. All of us, those who believe in Jesus, the resurrection is the teaching there, teaching point, truth. और यहाँ पर जो सीखने वाली बात है कि एक दिन हम सब पुनरुत्थान में वापस आएंगे, उस बात पर हम विश्वास करें कि हमारे शरीरों का जी उठना होगा। I think you got it. Yeah, thank you, Eva. So you please do your assignment. Now we will, my final point in today's study. और आज की इस अध्ययन में आखिरी बात को हम देखेंगे। Now we need to ask one question. The question is, yes, we understood. Yeah, thank you, Hema. Thank you, Hemalata. We understood that God has done so many miracles. Moses time, prophets time, Jesus time, church time. Is it happening even now, today also? Can we also expect such miracles, signs and wonders in our time also? That is the question. यहाँ पर एक प्रश्न हमारे सामने आता है कि हमने निर्गमन की किताब के मूसा के समय में, एलिया एलिसा के समय, चर्च के समय, यीशु मसीह के समय जो आश्चर्यक्रम देखे, क्या आज भी वही आश्चर्यक्रम होते हैं उसी प्रकार से? इसके बारे में बाइबल क्या कहती है? So many of us
Many a times people will ask us this question, and sometimes we also may have some question. Will miracles happen today? Can I also do like Peter did? कई बार लोग पूछते हैं, कई बार हमारे मन में ये प्रश्न होता है कि हम भी क्या उसी प्रकार जैसे पतरस करते थे, हमारे द्वारा भी चमत्कार हो सकता है? I want to answer this question by saying we need to understand the difference between that time and this time. हमें इस प्रकार से समझना है इस बात का उत्तर के रूप में कि उस समय और इस समय के बीच में क्या फर्क है, वो हमें जानने की आवश्यकता है। At that time, one thing that we need to understand, they did not have word of God, complete word of God in their hands. और पहली बात हमें ये जानना है, उस समय उनके हाथों में परमेश्वर का वचन पूर्ण रूप में जो है वो नहीं था उनके हाथों में। For example, during Moses' time, they never had law. Only then Moses wrote the scripture. We know that. First 5 books. उदाहरण के लिए मूसा के समय में उनके पास व्यवस्था नहीं थी, मूसा ने ही उस प्रकार से व्यवस्था को लिखा है। During prophets' time, they had only the first 5 books of the Bible. They never had the prophetical books because they themselves are prophets and they wrote it, and their books were available only after they died. और भविष्यवक्ताओं के समय जो है वो व्यवस्था की 5 किताबें बस थी और बाकी बातें नहीं थी, इसलिए वहां पर भी इस प्रकार की बातों को हम देखते हैं। So during the first century time, Jesus' time and apostles' time, they had only the Old Testament. Maybe in law book, first 5 books, and prophetical books, only Old Testament. The 39 books they had. और पहली कलीसिया के समय, यीशु मसीह के समय, प्रेरितों के समय भी 39 किताबों की पुराना नियम बस था, नया नियम उस समय नहीं था। So the early church people or the apostles people, they never had the full Bible, the 66 books of the Bible. They never had. They had only partial revelation, partial literature, partial Bible, not full Bible. पुराने समय जितने भी लोग थे जिनके बारे में हमने पढ़ा, किसी के पास संपूर्ण प्रकाशन नहीं था, पूरी बाइबल नहीं थी 66 किताबों वाली, उनके पास आंशिक प्रकाशन था। But today, all of us have, which they did not have, all 66 books of the Bible. लेकिन आज जो उनके पास नहीं था, हमारे पास 66 किताबों की पूरी कंप्लीट बाइबल जो है, संपूर्ण बाइबल हमारे पास में है। Yes, all of us have complete total revelation in the book, in this book, the Bible. हमारे पास परमेश्वर के वचन का संपूर्ण प्रकाशन पवित्र बाइबल के अंदर हमारे साथ है। So whatever we need to know about God or the spiritual truth, everything is written here. और जो भी हमको परमेश्वर के बारे में, आत्मिक सत्य के बारे में जानना है, सब इसके अंदर पाया जाता है। But for them, those days, miracles only were the main means to teach about God, to show about power of God. They never had Bible, full Bible. लेकिन उस समय जो चिन्ह चमत्कार वही एक साधन हुआ करता था परमेश्वर के बारे में जानने के लिए। उनके पास बाइबल नहीं थी, लेकिन आज हमारे पास तो है। So now for us to know more about God, His power, His glory, about His teachings, what God wants, what is the mind of God, Bible is the solution, main solution. तो आज हमको आत्मिक सत्यों को जानने में, परमेश्वर की सामर्थ को जानने में, उसके चरित्र को जानने में हमारे पास जो मुख्य बात है वो है बाइबल, जिसके द्वारा इन सारी बातों को हम जान सकते हैं। Because they did not have those days full Bible, miracles played major role. इसलिए कि वहां पर बाइबल उनके पास नहीं थी, इसलिए जो चमत्कार ने मुख्य भूमिका वहां पर निभाया था। Now for us, Bible is the main resource. आज हमारे पास बाइबल हमारा मुख्य साधन है। But as we have said, we are not saying that miracles and wonders will not take place. We are not saying that. लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि चिन्ह चमत्कार आज नहीं होंगे, ऐसी बात नहीं है। Miracles will happen even today also. आज भी चमत्कार जरूर होंगे। Healings will take place even today also. चंगाई आज जरूर से लोगों के जीवन में होगी। But we need to depend more on the scripture, the Bible, the word of God, to teach people or to know God, even ourselves and other people also, both. We need to depend more on the Bible, not more on the miracles and wonders and signs. लेकिन हमारी जो निर्भरता है वो बाइबल के ऊपर होना है, ना कि चंगाई के ऊपर। लोगों को सिखाने के लिए, सीखने के लिए, परमेश्वर के बारे में जानने के लिए बाइबल ही हमारा मुख्य आधार होना है। We need to explain people, we need to teach people, we need to preach this God's word to people
to teach them about God, to show them about God, and to explain about God, and to bring them to God, the gospel we need to preach. और हमें परमेश्वर के लोगों को सिखाने के लिए, समझाने के लिए, परमेश्वर के बारे में बताने के लिए इस परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करना है, सुसमाचार का प्रचार करना है। This is the first place, and this is the more important thing, scriptures. और ये जो पहला स्थान है और सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, वो बाइबल का है, पवित्र शास्त्र का है। Having said that, even though we preach the word of God, sometimes basing on the need, God will also do miracles, healings, even today. और उस आधार पर, परमेश्वर के वचन पर आधारित होकर जब हम प्रचार करते हैं, प्रार्थना करते हैं, कई बार आवश्यकता के आधार पर चंगाई होती है। But today, if you depend more on miracles, wonders, and healings, and keep the Bible in low place, you are wrong. लेकिन आज अगर आप चंगाई, चमत्कार, इन बातों को पहला स्थान देंगे और बाइबल को नीचे करेंगे, तो ये गलत होगा बिल्कुल ही। Some people are still doing that. They keep the word of God away. They keep the scripture away. They depend more on the visions and the dreams and the wonders and the miracles. No, it's wrong. कई लोग आज भी ऐसा करते हैं, बाइबल को बिल्कुल अलग कर देते हैं और ज्यादा उनकी बातें चिन्ह, चमत्कार, चंगाई और दर्शन पे उनका आधारित होता है। Whatever you need to know is already written in these 66 Bible books. It is complete and total. This is enough for us. और जो भी हमें आवश्यकता है इस 66 किताबों में लिखा गया है, हमारे लिए काफी है, पर्याप्त है परमेश्वर के प्रकाशन के लिए। But sometimes we need that miracles also. Even today we need that. I'm not totally rejecting miracles or healings. और कई बार चंगाई की भी आवश्यकता होती है, इस बात का हम इनकार बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। I think we got the balanced opinion, balanced teaching now. और हमें जो एक संतुलित शिक्षा और संतुलित रूप से चलने की आवश्यकता है। Thank you very much. God bless you. परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Each study, each week, we are learning new things, new points. God is speaking to us. God is teaching us from God's word. हर हफ्ते परमेश्वर हमें नई नई बातों को सिखा रहा है, शिक्षा दे रहा है, प्रचार कर रहा है उसके पवित्र वचन के द्वारा। So God is equipping all of you. God is teaching you many things through the study of Book of Acts. परमेश्वर इस प्रेरितों की किताब के अध्ययन के द्वारा बहुत सी बातों को आप सबों को सिखा रहा है। हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। So be equipped and become more strong, and you become preachers and teachers, and you become leaders like Peter and John. और आप सब बहुत ही मजबूत बने परमेश्वर के वचन में और पतरस और यूहन्ना के समान परमेश्वर के वचन का हम सब प्रचार करें। ये परमेश्वर का काम है। Praise the Lord. Thank you. परमेश्वर को महिमा मिले। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Yeah. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you very much for your thank God for this valuable message. बीच में पहले पास्टर जी मोइज भैया एक सवाल पूछा, हनन्या ऐसा मतलब इस सिचुएशन आपका कलीसिया में हुआ तो आपका कलीसिया का परिस्थिति क्या है? हनन्या सपेरे का वो जस्ट आपका परिस्थिति और आपका कलीसिया का परिस्थिति थोड़ा शेयर कीजिए। मतलब जस्ट सोच लिया, मतलब शुरुआत में बताया भैया, सोचने के लिए आपका मन में 3 में है और एक बहन 3 कौन लड़का बड़ी जी, लड़की की बात बड़ी। हेलो मेरा प्रवीण ब्रदर, अदरवाइज यू कैन टेल व्हाट आई एम। प्रदीप डोंगरे। हाँ बोलिए ब्रदर, देन आई विल। आप बोलिए। या वही है अनन्या सपीरा का इश्यू। हमारा कलीसिया मतलब पतरस उनको मतलब वो मारा हुआ ना, मतलब दे वर किल्ड, सो दैट सिचुएशन, ऐसा परिस्थिति हमारा कलीसिया में हुआ तो कलीसिया का परिस्थिति कैसा रहेगा करके सोचने के लिए बताया ना। तो जस्ट आपका व्यूज दे दीजिए, बताइए। बारे में सभी को जी।
आप लोग बता सकते हैं इसके बारे में कि अगर ऐसा परिस्थिति आपके कलीसिया में होगा तो क्या होगा आपके चर्च में, या आपके जीवन में क्या सोच आएगा, क्या होगा, इसके बारे में आप बोल सकते हैं। अभी कुछ लोग जो है इसका उत्तर आप दे सकते हैं। जी, आपको क्या लगता है क्या होगा इसमें, आप लोग बता सकते हैं? नहीं, एक शिक्षा मिलेगी इसके द्वारा कि अगर हम गलत करेंगे तो परमेश्वर के द्वारा हम दंडित किए जाएंगे। जिस तरीके से हनन्याह और सफीरा को दोनों को मृत्यु दंड मिला, तो इसके द्वारा अगर हमारे चर्च में ऐसा है तो श्योर ही हमारे चर्च के लोग अगर गलत काम को कर रहे हैं तो जरूर उनको पनिशमेंट मिलेगा, परमेश्वर जरूर देगा इसके द्वारा। You tell, Praveen Bhaiya. Okay. Pastor Ram Singh is saying, our people will learn that if they are doing wrong, then God will judge them and punish them, and they will learn good things about God, about His punishment and judgment. So people will be sincere after this kind of incident. He's saying. लेकिन अपने चर्च में हमको जैसे पतरस ने भी प्रचार किया, न्याय किया उस समय, और जैसे पवित्र आत्मा उनके द्वारा बातचीत किया, उन्होंने सीधे सीधे उस बात को बोला और प्रचार किया, और उस बात को उन्होंने तो भी नहीं मान रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने उनका न्याय किया फिर वहां पे। So God's people, if they continuously rebel against God, then God is going to judge. This kind of teaching will be spread in the church. He is saying that. लेकिन हमको उनको बताने में पीछे नहीं हटने की जरूरत है, और उनको उस बात को आगाह कराने की जरूरत है। But we should not hesitate to tell them the truth, then what God is going to judge, and we need Correct. to make them aware about the judgment of God. Correct. ये हमारे पास्टर्स लोगों की, हमारे लीडर्स लोगों की बहुत जरूरत है, जो कि उनको शिक्षा देने में पीछे हो जाते हैं। It's the responsibility of our pastors and leaders who always go back in teaching the people of the church. Thank you, brother. Thank you very much. वेलकम सर। मैं कुछ कहना चाहती हूँ ब्रदर। जी बताइए। मैं इस विषय के लिए, मैं अपने कलीसिया के लिए जहाँ तक मैं देखी हूँ, मैं अपने कलीसिया में अभी जो, क्योंकि मैं दूसरा कलीसिया का बात नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन हमारे कलीसिया में ऐसा स्थिति अगर होता है तो जरूर हमको जो अगुवाई परमेश्वर की ओर से दिए गए हैं, उनके द्वारा हमको ये हमेशा ये शिक्षा मिलती जा रही है कि कहीं परमेश्वर के, हम मनुष्य के सामने तो झूठ बोल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने कभी नहीं। और कभी कभी जब ऐसा परिस्थिति हुआ है, हमने ये देखा है कि जरूर हमारी अगुवाई जो है, जो पास्टर जो है, जहाँ ये गलत हो रहे वहाँ अपना मतलब प्रभु के वचन के द्वारा जो गलत करने जा रहे लोग, उनको प्रभु के वचन के द्वारा उनको मतलब वार्निंग भी दिए है वचन के द्वारा ही। तो इस चीज के लिए अगर दूसरे कलीसिया में अगर होता है तो हमको यही करना है कि जैसे हम अपने परिवार में ऐसा स्थिति ना होने का, मतलब परिवार में कोई गलत काम ना होने, ऐसा हम निरंतर जैसे प्रार्थना करते हैं, हमारे कलीसिया के लिए भी ये प्रार्थना करना हमारा ही जिम्मेदारी है कि ऐसा परिस्थिति ना आए। अगर आए तो हम सबका जिम्मेदारी, क्योंकि परिवार होके सब एक दूसरे के लिए जैसे प्रार्थना करते हैं, हम सबका जिम्मेदारी भी रहता है कि क्षमा का भी प्रार्थना करने का। धन्यवाद। Okay, Himlata sister is saying that if our people will learn that if we are telling, we can tell lie to men, but we cannot lie to God. This kind of teaching they will get, and also we have to pray for our people in our church that this kind of incident should not happen in the church. This is the responsibility of us, that we have to pray continuously for our church members. He is saying that. Correct. जी, मैं बात बोलना चाह रही हूँ कि मेरे ना एक कोवर्कर है, उससे मेरी बात हुई थी कि इस विषय में, तो उसका कहना था कि यदि आज प्रभु ऐसा दंड दे तो बहुत अच्छा होगा कि कोई भी मतलब इस दंड से नहीं बचेगा, तो जो झूठ बोलते हैं वो मतलब मर जाएंगे तो अच्छा ही होगा। और मैंने उसको बोला था कि यदि सब लोग मर जाएंगे तो फिर लोग
बचेंगे वो अनुग्रह के काल में। इसीलिए आज हमें परमेश्वर ने रखा है कि आज हमारे साथ ये दंड नहीं हो रहा है, तो लेकिन उसका कहना वही था कि ऐसा दंड यदि मिलने लगे लोगों को तो सब लोग सचेत हो जाएंगे आगे के लिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और वो अन्य जाति बहन है जी 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 जी, उसका ये कहना है कि ऐसा दंड मिले तो अच्छा ही होगा। जी जी। ब्रदर प्रवीण ब्रदर, आप जस्ट ट्रांसलेट कीजिए, देन आई विल स्पीक टू ब्रदर मोजेस। Yeah, everybody will be alert if this kind of thing happens in the church, according to Sister Eva Kales. So it will be very good if God punishes, because people will be very disciplined and they will be getting fear about God. Okay, this kind of things. Can I add something, sir? No, Yeah, please. Brother, 1 minute, brother. Just actually, what Eva Kale's sister has, what I understood is that somebody yeah, अन्य जाति है, अन्य जाति, if God is punishing like that, no one will be there, because अन्य जाति अन्य व्यक्ति पूछा है, then she told that if God is punishing for some mistake, no one will be available on this earth. That's what I also thought to ask Brother Moses. Thing is that the time of Peter, he has done like that, but now in church we are preaching about grace. So how that type of issue can happen? That means people will be worried. Really, if God punishes something like that, how can we take? Okay, yeah. See, that's why I told you, whenever there is new beginning of a salvation history, new era, like Akan is one example, Nadab and Abihu is one example. Like that, sometimes they did, but not every time, not everybody. Like that, here in Ananias and Sapphira in Luke 5, Acts 5, it's an example for all of us. So today also, we may not expect that every time God will punish, God will kill people like that. That's number one. Number two, at the same time, we cannot take sin easily. We cannot take God's grace for granted. Suppose I am there. I am giving my example. I am sinning. I am disobeying. I am entertaining some secret sin within myself. Nobody knows about it, but God knows, and I know. If I continuously do like that, I may also receive God's punishment. God will give grace. Yes, God will forgive me. But I should not take it for granted. Because God is gracious, because God is forgiving, I should not think that I can continue in sin. That is a wrong opinion. Yes, सर का ये कहना है. Yes. Yeah. विजय भाई का ये प्रश्न था, यदि आज हम अनुग्रह के बारे में कलीसिया में सिखाते हैं, लेकिन इसके बारे में हम क्या बताएंगे? इस प्रकार से जो पाप होने से क्या परमेश्वर इस प्रकार से दंड देगा, हम क्या कहेंगे? तो मुझे सर ने इस बात को बताया कि ये जो बातें हुई हैं, ये विशेष समय में किसी विशेष युग के शुरुआत में हुआ, हर समय नहीं हुआ है. तो हम ये नहीं बोल सकते कि कोई भी व्यक्ति पाप करेगा तो इस प्रकार का घटना घटेगा. लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि एक व्यक्ति लगातार अगर पाप कर रहा है, वही पाप में है, तो परमेश्वर न्याय नहीं करेगा. परमेश्वर उसका न्याय उस प्रकार से भी कर सकता है, लेकिन हर एक व्यक्ति में हर समय में ऐसा करेगा, ऐसा करके बाइबल में नहीं सिखाता है. नया कोई शुरुआत होने के समय में परमेश्वर उस बातों को ज्यादा प्रदर्शित करता है. But can I add something, brother? Yes, please, Praveen. Brother, two things are in my mind regarding this incident. दो चीजें मेरे दिमाग में है. As your question was, what will happen to your church? So when we say church, actually we can say the thing which will happen will depending upon the situation, means the condition of the church. Because in chapter 4, Acts chapter 4, we study that they were, after getting salvation, they totally depend on the word of God. That's why after these things, they got more encouragement, more fearful to God, more respect towards God they developed. So a church which is really dependent on the word of God, which is, see, because many people are coming for blessings in the church nowadays. Most of the people, in many churches, not in all, but many churches. And preaching is also about blessing.
In a place where we are going for blessing, if somebody sees death, then next Sunday he will not be available. He will say, this is not a good place. We came for blessing. Here the death is occurring. Reason he doesn't mind, because he is not, it is not based on the word of God. Can't understand about the sin, what is sin, what is the result of sin, nature of God. So the basic thing is that the result occurred will be dependent on the situation of the church, whether it is a spiritual church based on the word of God, or a worldly carnal church based on the blessings of God, always thinking about blessing and what I will receive. This kind of people are there, definitely church will be scattered. Because sometimes what I had heard, many people I have met who were going to church and they started stopped going to church because of the reason they saw some problems in the life of the believers. They saw some kind of problems in different believers' life. So that they said, well, we depend for blessing, but there are some problems occurring. So what is the profit to go in the church? So this kind of believers are also there. So if this is the situation, then church will be scattered. If they are dependent on the word of God, then only they will be fearful towards God and they will be more respectful for God. I think so. This is the thing. Our church should be based on the word of God. This is the basic requirement if we want to see the same thing which happened in the book of Acts, because they got encouragement, they got more powerful, the healing and miracle were taking place. These things will also happen if we are a spiritual church, then only. I think so. Should I translate us? No need. No need. ये आप just as a summary brief, if you translate, it is good for. Okay, just 2-3 lines, brother. देखिए मेरा कहना ये है, अगर हमने बोला हमारा चर्च में लोग प्रभु का भय मानेंगे, अच्छा बात है, लेकिन प्रभु का भय तभी मानेंगे जब प्रभु को जानेंगे। प्रभु को अगर नहीं जाना है लेकिन चर्च में आ रहा है आशीष के लिए, चंगाई के लिए, क्योंकि वो तो अपना फायदा के लिए आ रहा है ना। अगर उसको वहां पे कोई भी कारण से किसी व्यक्ति का बड़ा प्रॉब्लम हो गया, किसी का डेथ हो गया, देन वो भी फियरफुल हो जाएगा, वो भी डर जाएगा और दूसरा संडे से चर्च आना भी बंद कर देगा। लेकिन जो व्यक्ति प्रभु को जाना है, उद्धार पाया है, प्रभु से प्रेम करता है, वो व्यक्ति का अंदर में प्रभु का जो भय है वो जरूर से आएगा। लेकिन हर व्यक्ति के अंदर हम नहीं बोल सकते हैं। हमारा कलीसिया आत्मिक कलीसिया बनना है, तब कोई भी घटना होने से हम प्रभु का अनुसार उस बात को समझ सकते हैं। लेकिन एक सांसारिक कलीसिया होने से केवल चिन्ह चमत्कार चंगाई पे आधारित है, तो ये बात हमारा जीवन में प्रभु का पास लाने का कारण नहीं बन पाएगा। इस बात को हम समझ सकते हैं। तो जी 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 जी, थैंक यू। See, means the same thing. I think Paul has said somewhere in I'm not remembering. See, if a person is going to God for a spiritual blessing, for his fellowship and his kingdom and spiritual blessing, प्रभु का उपस्थिति के लिए और प्रभु का आत्मिक आशीष के लिए गया, तो वो कोई परिस्थिति है प्रभु के साथ में रहेगा। If the person is going for a materialistic blessing, so कुछ परेशान हुआ तो वो नहीं रहेगा। So what is the intention of the believer? Whether he is going to God for a material, मतलब हम आशीष चंगाई के लिए जा रहे हैं तो नहीं मिला, नहीं है तो बाजू वाला किसी को दुख मिला है तो वो वापस नहीं आएगा। लेकिन आत्मिक जीवन के लिए गया तो यस 100% वो कैसा भी है। 1 Corinthians 15:19 ब्रदर, पहला कुरिन्ती 15:19 में ये वचन है, यदि एक व्यक्ति केवल इसी जीवन में मसीह में आशा रखते हैं, यही इसी जीवन के लिए अगर प्रभु के पास जा रहे आशीष के लिए, तो वो लिखा है बाइबल में 1 कुरिन्ती 15:19 में, तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे, हम लोग दुनिया के लोगों से भी ज्यादा क्या बोलेंगे रचेड है, हमको कोई आशीष नहीं है। अगर हम प्रभु में ओनली फिजिकल ब्लेसिंग के लिए, सांसारिक आशीष के लिए जा रहे हैं, दुनिया के लोगों से भी ज्यादा हमको अच्छा नहीं है, धन्य नहीं है, वो हो हाय हमारे ऊपर में है। ये प्रभु का वचन हमको बोल, इसलिए धन्य तभी है जब हम प्रभु का वचन पे आधारित है। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू वेरी मच। ना मोशना विल क्लोज। या प्लीज क्लोज इट। थैंक यू आनंदाल, प्रभु को महिमा है आज का अध्ययन के लिए। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ इस अध्ययन प्रेरितों का किताब बहुत लोगों को आशीष कारण हो सके।
मैं कितना बोल सकता है उतना सभी को एक एक को मैं मैसेज करके बुला रहे। आप लोग प्रार्थना में याद लीजिए, बहुतायत लोग जोड़ पाए और आशीष पा सके। So Anna, we might have till August, September, no? This one by this Yeah, it will continue even. Yeah. Till September, hope. Yes. Tentatively. प्रभु एक योजना दिया, सितंबर तक ये रहा है, तो एक सोच प्रभु दिया, सेवक प्रभु का दास और लीडर्स, प्रचारक स्त्री पुरुष लोगों के लिए आने वाला दिनों में अक्टूबर नवंबर में और कुछ क्लासेस रखने के लिए दूसरा तरीका ये प्रेरितों का किताब के द्वारा बाद में। तो प्रार्थना कीजिए, बहुत लोगों को जोड़ने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। आज आप लोग प्रोत्साहित कर रहे और कंटिन्यूस आ सके प्रोत्साहित कीजिए और प्रार्थना में याद लीजिए। थैंक यू वन एंड ऑल। और फाइनल अंतिम प्रार्थना किरदास ब्रदर, आप है ब्रदर? हाँ जी सर। हाँ, अंतिम प्रार्थना और आशीष दीजिए। थैंक यू। जी धन्यवाद 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 देता हूँ स्वामी, आपका नाम का तारीफ बड़ाई करते हैं पिता। तुम महान और पवित्र खुदावन, जय जयकार करते हम आपके चरणों पर ले आते हैं प्रभु। आज की क्लास के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ खुदावन। आप निसंदेह खुदावन, आपने परमेश्वर पिता इस क्लास के द्वारा हर एक से बातचीत किया प्रभु। और परमेश्वर पिता हालेलुया प्रभु, आत्मा का जो परमेश्वर पिता हालेलुया प्रभु जी बातें हैं खुदावन की, परमेश्वर पिता हालेलुया प्रभु मसीहियत जीवन सत्यता का जीवन है प्रभु, और उसमें हम चल सकते हैं खुदावन। परंतु परमेश्वर पिता हालेलुया प्रभु, थोड़ा सा चूक, थोड़ा सा लालच और तो परमेश्वर पिता हालेलुया प्रभु संसारिक बातों का मोह माया खुदावन दबाव नाश कर सकते हैं प्रभु। परंतु खुदावंत वही परमेश्वर पिता दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु जी, आपके वचन तो कहते खुदावन हालेलुया प्रभु जी, सबने पाप किया परमेश्वर के महिमा से रहित है करके खुदा। परंतु खुदावन हालेलुया प्रभु जी, रोमी के पुस्तक में खुदावन 6:23 में कहा है परमेश्वर के अनुग्रह अनंत जीवन है करके प्रभु। आज हम अनुग्रह में जीवन जी रहे खुदावन, इसीलिए बचा जा रहे खुदावन। अगर अपने आप को जांचते खुदावन हालेलुया प्रभु, कई प्रकार के पाप और बुराई जीवन में पाए जाते प्रभु। परंतु खुदावंत आपने कहा प्रभु जी, मैं पवित्र हूँ ऐसे तुम लोग भी पवित्र बनो करके खुदावन। प्रेरितों के पहला पत्रस उसका परमेश्वर पिता पहला अध्याय के 15 और 16 वचन में कहा प्रभु जी, वैसे पवित्रता के साथ जीवन जीने के लिए सहायता और मदद कर प्रभु। कितना उस पल होगा प्रभु जी जिस समय एक आत्मिक परमेश्वर पिता हालेलुया प्रभु लोग रहते थे, मिलते थे, अपने सारे संपत्ति को ला करके देते थे खुदावन, और परमेश्वर पिता साझे के अनुसार सबको जो आवश्यकता होते थे बांट देते थे प्रभु। परंतु परमेश्वर अन्याय सफर के द्वारा हम देखते खुदावन कि परमेश्वर जैसे ही पाप किया और खुदावन दोनों के दोनों परमेश्वर पिता वहीं गिरा और खत्म हो गया प्रभु। इनसे हमें परमेश्वर पिता एक सीख मिलते प्रभु कि कभी भी पाप न करें, कभी भी बुराई न सोचें, कभी भी लालच में ना आए प्रभु, परंतु आपके मार्ग में परमेश्वर पिता चलते हुए परमेश्वर सत्याई के रास्ता में चल सके और आपकी महिमा कर सके। धन्यवाद देता हूँ खुदा आपके दोनों दास के लिए प्रभु जी, भैया बड़ा मुजेश भैया के लिए धन्यवाद देता हूँ खुदा कि आपने परमेश्वर पिता अच्छा सुंदर प्रकाशन दिया खुदावन, और अच्छा परमेश्वर पिता बाइबल को समझा करके परमेश्वर पिता हमारे बीच में रखने के लिए सहायता किया। धन्यवाद देता हूँ पिता। भाई परमेश्वर पिता जो ट्रांसलेट किए हैं खुदावंत, हमारा प्रवीण भैया के लिए भी धन्यवाद देता हूँ प्रभु। अपने कीमती समय निकाल करके दोनों दास ने परमेश्वर हमारे बीच में आया और अच्छा से अच्छा परमेश्वर पिता ट्रांसलेट करने के लिए और वचन सुनाने में सहायता और मदद किया, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ खुदा। बाइबल शिक्षक खुदा हमारे जीवन के लिए, हमारी सेवा के लिए बहुतायत से एक लाभदायक का कारण हो रहे खुदा। सेवकाई में परमेश्वर पिता एक अच्छा फल भी, और परमेश्वर पिता जीवन में भी एक अच्छा आत्मिक फल परमेश्वर पिता आने के लिए
आप सहायता और मदद कर प्रभु जी। जितना भाई बहन जुड़े हैं उन सब के लिए धन्यवाद देता हूँ खुदावन। ये वचन को और भी गहराई से अपने हृदय में परमेश्वर पिता रखने पाए प्रभु, और सेवा में भी इस्तेमाल करने पाए, और इस बात को खुदावन हर एक विश्वासी भाई बहनों के बीच में भी परमेश्वर पिता जो सुने हैं उनको बताने पाए प्रभु, ताकि सबके जीवन में एक सुधार और आशीष आए प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ खुदावन हमारे विजय चंद्रन भैया के लिए, उनके परिवार के लिए, सेवा के लिए, उनके इतना बड़ा बोझ के लिए खुदावन को सबके लिए बोझ रखते प्रभु, ताकि इस शिक्षा के द्वारा आत्मिक परमेश्वर बढ़ोतरी हो सके और खुद का जीवन को परमेश्वर पिता हालेलुया प्रभु जी, और परमेश्वर पिता हालेलुया प्रभु पवित्रताई से रख सके। इस तरह बोझ रख करके खुदावन परमेश्वर पिता हमारे जीबीएम मिनिस्ट्री द्वारा बाइबल क्लास चला रहे हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं राजा। आगे भी परमेश्वर पिता उनके दर्शन को पूरा कर और सब मिल करके खुदावन तेरे महिमा में परमेश्वर पिता बढ़ सके, आत्मा जीत सके और आपकी महिमा कर सके। गॉड विजन मिनिस्ट्री को आपके हाथ में सौंपता प्रभु, इस सेवा द्वारा 5 राज्यों में आशीष दे खुदा, और परमेश्वर पिता हालेलुया प्रभु जहाँ जहाँ नहीं पहुंचे आपके वचन पहुंचने में भी सहायता और मदद कर प्रभु जी। आपने परमेश्वर पिता अच्छा से अच्छा प्रभु जी सारे बात हमारे जीबीएम मिनिस्ट्री के द्वारा प्रभु जी हमारे एक लाभ के लिए, आशीष के लिए, और 5 राज्य को खुदावन जीतने के लिए हम लगातार प्रार्थना कर रहे खुदावन। आमीन के साथ खुदावन आपकी योजना पूरा हो और आपकी महिमा पूरे भारतवर्ष से खुदा आपके नाम से बचाया जाए। इन दिनों में प्रभु जी कई कठोर कानून आने वाला है परमेश्वर पिता, और एक नया पूरा वर्ल्ड लेवल में एक नया सरकार बैठेगा, एक नया मंदिर का निर्माण होगा, और वो कहाँ से होगा, कब होगा, कहाँ नहीं जा सकता प्रभु, परंतु 666 के अंक जल्दी से जल्दी आने वाले हैं, अंतिम युग में है प्रभु। तब तक परमेश्वर हम भय और भक्ति के साथ आपके साथ जीवन जी सके प्रभु, ऐसे सहायता कर। सारी बातों में आपका आदर महिमा देते हुए आज के क्लास के लिए विशेष धन्यवाद देते हुए प्रार्थना में उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगता, सुन और दया से कबूल कर। आमीन जीसस, आमीन आमीन। आशीष पिता का प्रेम, प्रभु का अनुग्रह, पवित्र आत्मक संगति, सहभागिता हम सब के साथ, जगत के उद्धार के साथ अब से लेकर प्रभु के दोबारा आगमन तक होती रहे। आमीन जीसस, आमीन। थैंक यू सर। थैंक यू ब्रदर। जय मसीह की। थैंक यू अन्ना। Thank you. Praise the Lord. Bye. Praise the Lord. Thank you, brother. Welcome to you. Praise the Thank you. Lord. Bye. Praise the Lord. Thank you, Jesus. सभी को जय मसीह की।